Hare Krishna, everyone. A very, very warm welcome to all of you all. Thank you very much for joining us in this special book distribution program that will be conducted by His Grace Radheshyam Prabhuji. Everyone in ISKCON circles need no introduction to Radheshyam Prabhu, but for the benefit of the newcomers, just allow me to say a few words. Radheshyam Prabhu is a brilliant student in his youth, was an MTech IIT Mumbai topper. And he worked after that at CISRI as a researcher and also with other companies like Thermax and Matter & Platt for a few years. In his younger days, he was inspired by the teachings of ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, and then he took up full-time monkhood to guide the youth of India on how to balance material and spiritual lives, the two parallels that is necessary for everyone's life journey. So, like Naradji, he travels, of course, not in between space of different planets, but he travels all around the world, spreading Krishna consciousness. And in the process, he has held major leadership roles. So for 20 years, he was the president of ISKCON Pune. And now we are actually quite lucky because he is also on the presidential boards of ISKCON Abids, which is at Hyderabad. I'm sure all of you all know that. So he would be, that means we will get a chance to meet him more often. And he also is a part of the Global ISKCON Committee for training youth across the world. Besides this, he is the founding director of VOICE, acronym for Vedic Oasis for Inspiration, Culture and Education. So this is the youth wing of ISKCON. And he also regularly lectures at IITs, NITs and engineering colleges in India and abroad. And he is the recipient of Global Excellence Award winner for educating youth on the principles of Bhagavad Gita. He also presents seminars and at various corporates like Bank of India, Infosys, Cognizant, Persistent, etc. And so, aren't we all very lucky to have him here with us? Yes? Thank you so much, Prabhuji, for taking time out to be here with us. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll hand it over. So you can, they know Hare Krishna mantra, some of them, they have. So how many of you know the full Hare Krishna mantra? You can raise your hand. You know the Maha mantra? Hare Krishna mantra? Okay. How many of you are going to be newly introduced to Hare Krishna chanting? Hare Krishna mantra? There are a few? Okay, please you all repeat after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So, this Maha Mantra is given in one conversation between Lord Brahma and Narada, where Brahma says that anyone who chants this mantra in this age in which we are living now, this age is called Kali Yuga. If anybody sings or chants this name, very quickly this can act as a medicine and calming the mind and healing the evils of the mind and awakening pure love for God and for all living beings. So, any class we do, we always begin with this chant, okay? So when I sing one full mantra, you all can kindly hear me. And then when I stop, then you will sing after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Must can play this? Mataji Kartali can play? She can play? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Fast. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
कृष्ण महामंत्र की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Please all of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya। ये जो नाम लिया मैंने अभी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब इस प्रकार है, मैं परम सत्य परम भगवान वासुदेव को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे गुरु महाराज उनके 19 साल में वो एक बार भारत में आ पहुंचे थे परम सत्य की खोज में। उस समय भारत के एक ट्रेन में चढ़ते थे, अलग अलग बस्ती में उतरते थे, अलग अलग साधु संतों को मिलते थे, उनके संग में रहते थे कुछ समय के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो एक समय उनको संग मिला एक राम सेवक स्वामी नाम के एक साधु महात्मा के। उनके संगति में वो लोग ठहरे थे, लगभग 15-20 साधु लोग साथ में थे। ये भी जाकर उनके साथ बैठे, कथा श्रवण किया रामायण की। 3 महीने रहे उनके साथ, बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने देखा कि भारत में साधु संत लोग कैसे रहते हैं, उनको देखने की इच्छा थी। उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कपड़ा है जिसको टर्बन के रूप में पहनते हैं, नहीं तो अंगवस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो रात को उसको ही लगाकर सो जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर जाते हैं बंदरों को भगाने के लिए, कुत्तों को भगाने के लिए ऐसे। और एक बर्तन होता है जिसमें पानी रखते हैं, चपाती रखते हैं, सब्जी रखते हैं, दूध रखते हैं, सबके लिए एक ही बर्तन है। ज़्यादा सामान नहीं इन लोगों के पास है, इनके पास कम, लेकिन है बहुत खुश ये लोग। वो देखा उन्होंने, सब रामायण की कथा श्रवण में मग्न होकर आनंदित होकर जीवन जी रहे थे। तो 3 महीने रहे उन्हीं के साथ। उसके बाद एक दिन उनको उधर से निकलना था उनके भ्रमण सफर में। तब राम सेवक स्वामी ने बोला कि आप आज आप निकल रहे हो, आपको कुछ भेंट दूंगा। तो उन्होंने एक लाठी लाने के लिए बोला, उनके हाथ में दिया। तो मेरे गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी कोई पुरस्कार दे सकता है कि एक लाठी का आप किसी को देंगे। भेंट देना हो तो या तो कुछ गिफ्ट तो सोच विचार कर आप लोग देते हो ना। फिर भी अगर कोई साधु दे रहा तो उसको मना नहीं करना चाहिए ना, इसलिए लेकर रखा उन्होंने। ठीक है, ले लिया, निकल गए उधर से। तो ट्रेन पकड़कर जाते समय उनको प्यास लग गई एक स्टेशन में, तो नीचे उतरे। उन दिनों में हम लोग नल से सीधा पानी पी लेते थे। आजकल तो डरना पड़ेगा, आजकल बिस्लेरी बॉटल सील करके हम लेते हैं। उन दिनों में ऐसे ही पी सकते थे। तो एक नल में पानी पिया, मुड़कर देखा ट्रेन में इतने भीड़ बढ़ता, अंदर चढ़ नहीं पाए। बहुत भीड़ था, लोग चढ़ने के लिए छोड़ नहीं रहे थे उनको। तो उसी स्टेशन में रहना पड़ा उनको। ट्रेन आगे चला गया तो स्टेशन का नाम देखा, मथुरा जंक्शन लिखा था उधर। ठीक है, उन्होंने सोचा, पता नहीं था क्या स्थान है ये।
थोड़ा इधर घूमता हूँ, कुछ साधु महात्मा मिलेंगे, तो सत्य की खोज में थे, अलग अलग साधुओं को मिलते थे ऐसे। तो ऐसे घूमते समय एक दिन की बात है, उन्होंने एक गली में पहुंचे। उस गली में कोई नहीं थे, अंधेरा छा रहा था, रात का समय आ रहा था अभी, लगभग 7 बजे के आधा घंटा पहले शायद। तो ऐसे चलते समय अचानक उन्होंने देखा दूर से ऐसे 5-6 कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए दौड़ कर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि क्यों इतना नाराज दिख रहे हैं सब कुत्ते। पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं थे। ये सारे गली में अकेले थे। तो सोचा कि अरे लगता है कि मेरे ओर ही भागते ही आ रहे हैं ये सब कुत्ते। तो जब निकट आ रहे थे, इन्होंने सोचा कि लगता है कि मुझे पकड़कर फाड़ देंगे, मुझे मार ही देंगे मुझे। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है? अगर मैं भागूंगा तो पीछे करेंगे। तो वह लगता है कि, और वो सब कुत्तों के मुंह से फेन निकल रहा था, और बहुत एकदम तीक्ष्ण दांत था उनका। तो लग रहा था कि बड़े नाराज भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक चीज है, क्या है? लाठी है। तो इसको इस्तेमाल करके मैं इनको भगाऊंगा। इस तरह सोचकर ऐसे चलाने लगे लाठी को। तो कुत्ते पीछे भागते थे, वापस आ जाते थे, भागते थे, आते थे। अगर ऐसे करते हैं तो ये कुत्ते जाते थे, ये कुत्ते निकट आते थे। ऐसे करते हैं तो ये पीछे जाते थे, ये आते थे। ऐसे ऐसे एक एक करके आना जाना ऐसे कर रहे थे वो। तो ये कुछ क्षणों के लिए ऐसे चल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा शक्ति भी क्षीण हो रहा है, कितना समय ऐसे करते जाऊंगा मैं? अगर लगता है कि मैं हार जाऊंगा, ये मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, मुझे खत्म कर देंगे आज। लगता है कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है पता नहीं। ऐसे सोचते हुए पीछे 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 हटते हुए आजमाते गए। अचानक उनके पीठ जो है एक दरवाजे को छुआ, और देखा कि दरवाजा बंद नहीं था, खुला था। तो ऐसे किया उन्होंने, दरवाजा खुल गया। ऐसे ही कमरा था, ऐसे खुल गया दरवाजा, अंदर तुरंत अंदर चले गए और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दिया उधर। तो अंदर जाने के बाद देखा कि अभी मैं बच गया, कुत्ते सब बाहर। मैं अंदर आ गया, अभी अंदर आ नहीं पाएंगे। लेकिन एकदम अंधेरा था अंदर, पता नहीं किसका घर था। तो अचानक घर का मालिक जो था वो लाइट स्विच ऑन किया। देखा कि कोई अनजाना आदमी अंदर आ गया है। कौन है ये व्यक्ति? हो सकता है चोर। वो तुरंत रसोई में गया, एक बड़ा चाकू लेकर आया। चाकू लेके आकर उनको दिखाया, है कौन हो तुम? ऐसे पूछा। तो मेरे गुरु महाराज समझ गए कि ये डर के मारे चाकू लाया है। एकदम तीक्ष्ण चाकू था। सोचा कि मारने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि बाहर भागूंगा तो कुत्ते हैं, अंदर ये चाकू दिखा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उनको भाषा भी मालूम नहीं थी, हिंदी मालूम नहीं था उनको। सिर्फ अंग्रेजी मालूम था। इनको अंग्रेजी मालूम है, लेकिन वो आदमी को अंग्रेजी मालूमात नहीं है। और वो हिंदी जानता है, लेकिन महाराज हिंदी नहीं जानते। उनको समझाया, कैसे समझाया जाए सोच रहे थे। एक क्षण मात्र में उनको एक आइडिया मिल गया। तुरंत तो अपने घुटनियों में झुक गए और दोनों हाथ ऐसे जोड़कर ऐसे किया, उनको नमन किया उनको। वो तुरंत समझ गया कि ये तो कोई साधु बाबा। इससे कुछ खतरा नहीं है, कोई चोर नहीं है ये। ठीक है। वो किचन में जाकर कुछ फल लेकर आया, उसी चाकू से फल काट कर दे दिया उनको। ठीक है, खाओ। उनको मेहमान के रूप में स्वीकारा, और समझ भी गया कि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, डर के मारे आया है अंदर। इसलिए उन्होंने उनको ठहरने के लिए व्यवस्था की, रात को उधर ही ठहरे। अगले दिन सुबह उठकर निकल गए। लेकिन ये प्रसंग जो मैंने आपको अभी आपके सामने प्रस्तुत की, इसके संबंध में मेरे गुरु महाराज का एक अच्छा दृष्टांत निकाला उन्होंने। वो बता रहे थे कि इस दुनिया में ये जिस तरह कुत्ते मेरे पीछे कर रहे थे, इस तरह हमारे अंदर अनेक विकारें हैं जो कुत्ते जैसे हमें काटने के लिए आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग हमारे एकदम निकट नाता रिश्ता के साथ भी नाराज हो जाते हैं। देखिए, आप नाराज होते नहीं हो नए लोगों से। नए लोगों का हम बहुत सावधानी से उनके साथ बर्ताव करते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन जिन लोगों को हम बहुत प्रेम करते हैं उनसे ही ज़्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उनसे हमारी अपेक्षाएं कम होते हैं, बड़े होते हैं।
एकदम ज्यादा, और दिन ब दिन वो बढ़ता है घटता है, बढ़ता जाता है। हमारी अपेक्षाएं, ये दफ्तर खाने में हो, नहीं तो घर में हो, पड़ोस में हो, जिनके साथ भी हमारा संबंध निकट है उनसे अपेक्षाएं बढ़ते हैं, और अपेक्षाओं की पूर्ति ना होने के कारण हम लोग नाराज हो जाते हैं। कभी कभी छोटे चीज को बड़ा बड़ा करके हम नाराज हो जाते हैं। तो मैं जानता हूँ, हमारे सफर में एक घर में गए थे, उधर हमने सुना कि वो पति पत्नी 2 साल से एक भी शब्द बात नहीं किया, रहते हैं बहुत बड़े घर में हैं। और पिताजी बेटा से बात नहीं करता, बेटी से करता है, लेकिन माता बेटी से नहीं करती, बेटा से करती हो है। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, बड़ा घर है उनका है, लगभग उनके ऐसे 10-15 कमरा है, अनेक गाड़ी है उनके घर में, बहुत कंपाउंड है, घर बड़ा है, लेकिन हृदय सब टूटा है। तो क्योंकि इस तरह के विकार जब उठते हैं मन में, क्रोध का बड़ा उदाहरण दिया मैंने, हम लोग दुनिया में दुखित हो जाते हैं। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों को भगवान श्री कृष्ण गीता में ये एक नरक के द्वार बताते हैं भगवान। हाँ? तो अनेक हैं अनर्थ, उनको सरलता से हम समझेंगे। काम का मतलब क्या है? वर्जित, ये जो वर्जित चीज हैं उनके पीछे भागना जो होता है उसको काम बोलते हैं। वर्जित चीज का मतलब प्रोहिबिटेड। हाँ, जिसके पीछे, उदाहरण के लिए अभी छोटे बच्चे होते हैं वो कोको चॉकलेट चाहते हैं। कोको चॉकलेट आपने खाया होगा, ये जो जेम्स होता है, मालूम है ना, जेम्स। हाँ? पहली बार हमको जेम्स जब मिला इतना अच्छा लगा वो है, और वो भी रंग बिरंगा था। मैंने माँ को पूछा कि इस तरह का चॉकलेट कभी आपने खिलाया नहीं हमको, पहली बार दिया आपने, किधर से आता है? उन्होंने एक पैकेट दिखाया। और माँ को मैंने बोला पैकेट दे दीजिए हमारे हाथ में, हम देख लेंगे क्या करना है। पूरा पैकेट खत्म कर दिया हमने। माँ को बोला कि 3 दर्जन ले लो मार्केट से, ताकि हम घर में रखेंगे, रोज हम खाते रहेंगे। माँ बोली बेटे तुम्हारे सारे दांत गिर जाएगा तुम इस तरह पूरा खाओगे तो। ये चखने के लिए तुमको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत खराब चीज है, अच्छा नहीं है तुम्हारे दांत के लिए। वो बोली तुम केले खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए। हमने बोला ये सब फल हमको अच्छा नहीं लगते हैं, कोको चॉकलेट अच्छा लगता है। जो हमारे लिए भलाई करेगा वो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमारे लिए खराब है बहुत अच्छा लगता है। तो इसको काम बोलते हैं। जैसे ये एक दफ्तर खाने में हम जो ऑफिस में काम करते हैं, उधर एक आदमी था, वो विवाहित था। तो मेरे साथ एक दिन बात करते समय बोला कि हाँ, ये जो मैनेजर के पास नया सेक्रेटरी आई है उसके ऊपर उसको आकर्षण हो गया। हाँ, एक नई आई थी, ये सब लोग बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, इसका नाम क्या है, किधर से आई है, क्या भाषा बोलती है, विवाहित है कि नहीं। हाँ, ऐसा लोग बात करते हैं, इसको सुने बिना मर जाएंगे। हैं, ये इस तरह का ये क्या बोलते हैं उसको, गप्पा मारना बोलते हैं ना ऐसे। और वो बोल रहा था, मेरे पास आकर बोला कि मेरा विवाह हो गया, लेकिन मेरे पत्नी उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसको देखकर मुझे आकर्षण हो रहा है। मैंने बोला उसको, देखो तुम्हारी पत्नी गुणवती है, हाँ? लेकिन ये जो है रूपवती है। अभी उनको 6 महीने के बाद पता चला कि अनेक पुरुषों के साथ घूमती है वो। हाँ? तो मैंने बोला तुमको गुणवती चाहिए, रूपवती चाहिए? हाँ, तो वो बोल रहा है हमको दोनों साथ में चाहिए। साथ में मिलेगा तो अच्छा है, कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? गुण होना आवश्यक है, करेक्ट ना? चरित्रवान होना आवश्यक है, खूबसूरत दिखना आवश्यक है। देखिए, अगर अनेक माताएं हैं इधर, अगर आपको एक पति मिलना चाहिए, अगर वो चरित्रवान है, ही इज चेस्ट यू, जैसे प्रभु रामचंद्र एक पत्नी व्रत धारण किया, करेक्ट ना? ऐसे एक आदर्श पुरुष चरित्रवान चाहिए। नहीं तो जो जेम्स बॉन्ड जैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो चरित्रवान नहीं है, वो अनेक दर्जनों स्त्रियों के साथ घूमता है, वो अच्छा है। समझा ना आपने? इसलिए इस दुनिया में हम, जो चीज हमको अच्छा लगता है मन के लिए, वो खराब भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं लगता वो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए ये जो काम का मतलब है, जो वर्जित चीज है उसके पीछे भागना, उसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। तो क्रोध का मतलब क्या है? जब काम की पूर्ति नहीं हुआ तब क्रोध आता है। जैसे मैं बच्चे का उदाहरण दिया, अगर बच्चे को कोको चॉकलेट अच्छा लगता है, माँ बोलती है नहीं मना है, तुमको खाना नहीं है, तो क्या करेगा वो?
जमीन में लेट कर हाथ पैर हिलाकर चिल्लाएगा, रोएगा, वहाँ दे दो दे दो दे दो, नहीं तो मैं दुकान में ही सो जाऊंगा, आऊंगा नहीं, घर नहीं आऊंगा। हाँ, वहाँ तक को खरीद कर देना ही पड़ता है। हाँ? तो इतना क्रोध प्रकट करता है। इच्छा को, गलत इच्छा को पूर्ति नहीं किया तो क्रोध। ठीक है, वो रो रहा है करके एक पैकेट खरीद कर दे दो, तृप्त हो जाएगा क्या? क्या बोलेगा वो ये खाने के बाद? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? और मांगते रहना, लोभ बोलते हैं उसको। उसका मतलब है तृप्त करने से लोभ बढ़ता है, उसको तृप्त ना करने से क्रोध बढ़ता है। तो उसका मतलब काम की पूर्ति करने से लोभ बढ़ता है, काम की पूर्ति नहीं करने से। ये बात समझ गए सब लोग? उसका मतलब है तीन जो है, तीन में से क्या एक चीज है जिसके ऊपर बाकी दो चीज आधारित हैं? कौन पता? हाँ, सही बोला आपने। काम के ऊपर क्रोध और लोभ आधारित है। काम की पूर्ति से लोभ, नहीं पूर्ति करने से। इतना ही नहीं, ये तीन चीजें, इनके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। ये एक लड़का भारत में कंप्यूटर साइंस करने की इच्छा थी उसको, लेकिन उसको मिला था सिविल इंजीनियरिंग मिला था। ये बोला सिविल इंजीनियरिंग कुछ काम का नहीं। उसने कुछ एग्जाम लिखा इम्प्रूवमेंट के लिए, और कसरत करके उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया उसको। और वो मिलने के बाद 4 साल पढ़ा। उसकी इच्छा थी कि मैं MS अमेरिका में करना है हमको। हाँ? वो GRE टॉफल सब लेकर अमेरिका भी चला गया। हाँ? अमेरिका में जाकर MS कंप्यूटर साइंस किया उसने। उसकी इच्छा हुई कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है। हाँ? तो माइक्रोसॉफ्ट में काम चालू हो गया उसका। हाँ? तब उसने मुड़कर देखा, मेरे सब मित्र भारत में जो हमारे कॉलेज में पढ़े, वो जैसे कि वैसे पहले जैसे ही हैं। तो कोई छोटा छोटा नौकरी में है, मैं बहुत बड़े नौकरी में हूँ। वो थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, मैं बहुत कमा रहा हूँ। ऐसे मन में जब विचार आया उनको, तो उनके मन में क्या आया होगा? हाँ, हिंदी में बोले, मैं हिंदी में बोलने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, घमंड आ गया, अहंकार, अहंकार उनको बढ़ गया। हाँ, इसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद बोलते हैं। मद का मतलब उनके अहंकार बढ़ गया। एक दिन ये व्यक्ति जो था माइक्रोसॉफ्ट में कार में जा रहा था, तब देखा बिल गेट्स घुस रहे थे। तो उनकी गाड़ी में हमेशा 4-5 लोग उनके साथ जाते थे। वो उनका इनर सर्कल आदमी है, सब हंसते हुए बात करते जा रहे हैं। उनके इनर सर्कल में 25 लोग हैं, 20-25 लोग हैं, उनमें से 4-5 लोग बहुत निकट के हैं। तो ये देख रहा था कि अरे, ये लोग तो सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं बिल गेट्स को। मुझे भी इतना ऊंचे पदवी में आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में, मैं भी सीधा उनको मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। ऐसे बहुत प्रयत्न करके अनेक कोर्सेज किया, अनेक इम्प्रूवमेंट किया उनके डिपार्टमेंट्स में। अंत में उनको 25 लोगों में एक बनने के लिए मौका मिली उनको। 25 में एक बन गया है भी, तो सीधा रिपोर्ट भी करता था। लेकिन जब भी वो देखता था वो 4-5 लोगों को जो उनके गाड़ी में जाते हैं, इनके मन में कुछ ऐसे एक विकार उठता था। क्या? मत्सरता। मत्सरता का मतलब है पर उत्कर्ष असहनम है, दूसरों की उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, मत्सरता। उसके ऊपर वालों को देखता था तो मत्सरता होता था, उनके पीछे पड़े लोगों को देखता था तो मद होता था उसको। करेक्ट ना? इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्यता, इस तरह ये सब हम देखते हैं। और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं मोह बोलते हैं। मोह का मतलब क्या है? जो क्षणभंगुर चीज को शाश्वत मानना, तो शाश्वत चीज को नकारना, जो गंदे चीज है उसको श्रेष्ठ मानना, जो श्रेष्ठ चीज है उसको परवाह नहीं करना। जैसे एक बार मैं माँ मुझे मार्केट में लेकर गई थी, मैंने एक बड़ा एप्पल बलून देखा। एप्पल बलून जानते हैं ना? देखा आपने एप्पल बलून? बलून का अनेक बलून होते हैं, लंबा बलून भी होता है, और एप्पल बलून लाल लाल होता है, बड़ा ऐसे होता है। तो मैंने माँ को बोला कि माँ एप्पल बलून कैसे, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, मुझे चाहिए। माँ ने बोला बेटा एप्पल बलून के बदले में एप्पल खरीद कर दूंगी, तुम एप्पल खाओगे ना तुम, और तुम्हारा पोषण बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मैं एप्पल खरीद कर दिया हाथ में, मैंने फेंक दिया उसको, ये नहीं चाहिए हमको, वही चाहिए। ये एप्पल देखो इतना छोटा, वो एप्पल देखो इतना बड़ा है। माँ बोले अरे बेटे
इसको परिदोगे या ऐसा रहने वाला नहीं है हमेशा। हाँ, तुम घर जाने के पहले फट जाएगा, लेकिन ये आप उससे लाभ भी नहीं तुमको। हाँ, सिर्फ देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन तुमको पोषण नहीं मिलेगा उससे। फिर भी हमने बहुत हट किया, माँ ने दोनों एप्पल खरीद लिया। हाँ, एप्पल बलून भी खरीद लिया और एप्पल भी खरीद लिया। घर जाते जाते हम उसको हाथ में लेकर जा रहे थे, हमें एप्पल मिल गया, बड़ा एप्पल बलून। घर में पहुंच के फट करके आवाज आया और टूट गया वो। हम थोड़े समय रो पड़े। हैं, क्या करें, एप्पल बहुत सुंदर दिख रहा था, अभी दिख नहीं रहा, अभी है फट गया वो। और उसके बाद माँ को बोला अभी सही एप्पल दो, अभी खाएंगे अभी। है, इसको ही मोह बोलते हैं। मोह का मतलब क्या है, जो चीज काम का नहीं है उसको बहुत बड़ा मानना। है, और जो चीज अच्छा चीज है उसको परवाह नहीं करना, इसको मोह बोलते हैं। राइट है ना। तो ये सब विकार जिन्हें के बारे में मैंने बोला आपको, ये सब चीज हमारे मन को बहुत सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं हमारे मन में। जैसे एक इसी कमरे में मान लीजिए आप लोग प्रसाद लिया, आप लोगों ने राइस दाल सब नीचे पड़ा है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया आपने, उसको जमीन को धुलाया नहीं है, तो कोई शाम को कोई आता है अंदर, उसके पाँव पड़ता है राइस के ऊपर दाल के ऊपर, अच्छा लगेगा उसको? पाँव पड़ते ही चिपक जाएगा पाँव में, और उसको बुरा लगेगा, अरे क्या क्या कमरे में आप लोगों ने सफाई नहीं किया, पूछेगा वो। तो सबको बहुत बुरा लगता है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके विरुद्ध अगर आपने पानी डाल दिया, तो उसको एकदम वाइप आउट कर दिया, फिनाइल डाला, एकदम साफ सुथरा कर दिया आपने, फैन डालकर उसको सुखा दिया, कोई आता है कमरे में, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब क्या है, कमरा साफ नहीं है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, अगर कमरा साफ हो गया तो सबको अच्छा लगता है। यही चीज हमारे मन का भी, अगर मन को ये विकारों से मुक्त कर दिया हमने, हमको भी अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर हमारे मन साफ सुथरा नहीं है तो हमारे में जो विकार है उससे किसको दुख? दोनों को दुख, हमको भी दुख, दूसरों को भी दुख। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ, आप सोच इसके बारे में सोचिए। ये जो रावण जो था, मंडोदरी पतिव्रता नारी थी, फिर भी पतिव्रता धर्मपत्नी को त्याग कर वो सीता के पीछे पड़ा, सीता ही नहीं अनेक स्त्रियों के पीछे पड़ा हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक पुरुष को अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। चाणक्य बोलते हैं मात्रवत परदारेषु। परदारा का मतलब है दूसरों की धर्मपत्नी को हमें लक्ष्मी जैसे देखना चाहिए, माता जैसे देखनी चाहिए। लेकिन रावण पर स्त्री का हाथ पकड़ा, इसके कारण वो मर मिटा हो। इसको बोलते हैं टू द टेंडेंसी टू कैच। जीव, बद्ध जीव के अंदर इस तरह पकड़ने की आदत है, लेकिन गलत चीजों को पकड़ने की आदत है। दूसरा है दुर्योधन, दूसरे लोगों के जमीन के ऊपर आंख नजर डाला, सोचा कि पांडवों को मिठा दूंगा, उनके सारी जमीन हड़प लूंगा। करेक्ट है ना। इसको क्या बोलते हैं? चोर। दूसरों के जमीन को लूटने वाला कौन है? चोर है। तो वो करने के लिए उन्होंने कितना कितना षड्यंत्र रचाया पांडवों को मारने के लिए। आप लोग जानते हो, महाभारत में सुना होगा आप लोगों ने, विविध तरीके से उनको जंगल भेज दिया। जंगल जाने के बाद भी शांति नहीं रहा, उनको मालूम था कि 12 साल के बाद ये लोग वापस लौट आकर मांगेंगे, उसके पहले और एक उपाय ढूंढ लिया जाए ताकि इनको वापस भेज दे जंगल में, ताकि उनके जमीन को मैं भोग सकता हूँ। इस तरह उन्होंने लूटने की प्रयत्न की, लूटने के प्रयत्न करते करते खुद मर मिटा हो दुर्योधन ऐसे। तो इस तरह दूसरों के संपत्ति को लूटना नहीं चाहिए, ईमानदारी से कमा कर जीना चाहिए। तो चाणक्य बताता है परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, दूसरों के पैकेट में हाथ मत डालो, दूसरों के पैकेट को एक कचरा का डब्बा मानो, ऐसे बोलता है। कचरा का डब्बा में हम लोग डालते हैं लेकिन हाथ नहीं डालेंगे अंदर, करेक्ट? गंदा चीज है। इस तरह दूसरों के पैसे को कभी छूना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने छूने के लिए प्रयत्न किया, इसलिए मर मिटाओ। वो चोरी करने के लिए प्रयत्न की, लूटिंग। फर्स्ट वन आई टोल्ड यू, रावण क्या करने के लिए ट्राई किया? टू कैच द हैंड ऑफ अनदर मैन्स वाइफ। और दुर्योधन ने क्या किया? टू लूट अनदर मैन्स प्रॉपर्टी, लूट करने की। तीसरा, आप लोग शायद जानते होंगे कि हिरण्यकशिपु नाम का एक बड़ा राजा, वो ब्रह्मा के पास जाकर कठोर तपस्या करके ऊपर नीचे और मध्य लोकों के अधिपति बनना चाहा। और सारे उसकी इच्छा थी कि इस दुनिया में पूर्ण स्वतंत्र होकर मैं जियो।
मेरे ऊपर कुछ भी पाबंदी नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं चाहिए मुझे। आजकल के ज़माने में अगर कमरे में थोड़ा गर्मी बढ़ गया तो हम लोग एयर कंडीशन कर लेते हैं, राइट ना? लेकिन वो इतना प्रभावशाली अ, असुर था वो हिरण्यकशिपु। वो सूर्य को देखकर वो चिल्लाता था, "ए सूर्य, इतना गर्मी क्यों बढ़ा है आज?" हैं? तो सूर्य की देवता जो वो डर के मारे बोलते, "सॉरी सर, सॉरी सर।" वो ताप को थोड़ा कम कर देता था। डायरेक्टली उतना कंट्रोल था उसका प्रकृति के ऊपर। कोई कर सकता है आज जैसे? हैं? हाँ, इस तरह बगीचे में जाता था, शाम के समय बादलों को देखकर बोलता था, "आए हल्का बारिश।" तो वो हल्का बारिश देते थे वो उसको। हाँ, धरती को देखकर बोलता था, "ए निकालो सेब, निकालो आम।" हाँ, ऐसे आप बोलेंगे ये सब कपोल कल्पित कथाएं नहीं क्या? ऐसी चीज भी होते हैं क्या, आप पूछेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ आधुनिक दुनिया में भी जो लोगों ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह किया है, बायोटेक्नोलॉजी, वो भी लोग आजकल फर्टिलाइज़र डालकर ये उत्पत्ति जो है उसको बढ़ाते हैं, करेक्ट है ना? बढ़ाते हैं। इसी तरह जो आम का पेड़ बड़ा होता है, आम निकालने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करके उसको छोटा पेड़ कर देते हैं, ताकि आम को ऐसे ही पकड़ सकते हो। आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है आम का छोटा पेड़? करेक्ट है ना? हाँ। और ऐसा जो वाटरमेलन है, जो सर्कुलर वाटरमेलन, उसको स्क्वायर बना दिया है, ताकि वो लारी में स्टॉक करने के लिए अच्छा होगा, है ना? क्या-क्या करते हैं लोग, करेक्ट है ना? अगर आधुनिक इंसान इतना कर सकता है तो हिरण्यकशिपु क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक इंसान भी ये सब करता है, लेकिन उसके कारण लाभ है, नुकसान है? आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आप आजकल में मार्केट में जाकर देखो, ये एप्पल एकदम लाल-लाल दिखता है, हाँ? एकदम। तो आप लाल एप्पल देखते हो, दूसरा एप्पल जो है वो पीला और हरा दिखता है। तो अब दोनों में क्या खरीदोगे आप? ज़्यादातर लोग क्या खरीदेंगे? और घर लेकर आकर खाओ, चबा 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 चबा, कुछ टेस्ट नहीं। अंदर जो जैसे ये सॉफ्ट पाउडर जैसे लगता हो, कुछ भी उसमें ये नहीं, जूस नहीं है उसमें, हाँ? लेकिन जो हरा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, वो वो जो है उसको खाकर देखिए, उसमें जूस है। जैसे मूँग दाल जो आता है, सुनहरा मूँग दाल दिखता है, एकदम चमकने वाला, सोना जैसे, हैं? लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो, हाँ? उसमें दम नहीं है, शक्ति नहीं है, उसको खाओगे आप पतला होगे, हैं? उसमें कुछ नहीं, उसमें असली जो मूँग दाल है वो डल दिखता है, हाँ? आप देख सकते हैं। इस तरह ये गोवा आता है, गोवा बहुत मोटा हो तो खरीदना मत, हाँ? वो हाइब्रिड है, उसमें शक्ति नहीं है उसमें। तो छोटा ए साइज़ का आता है, काटने के बाद उसमें अंदर लाल होगा, रोज़ कलर होगा, वो असली गोवा है, हाँ? दैट इज़ द नेचुरल, दैट्स हेल्दी, वेरी हेल्दी। मोटा वाला आता है, सब लोग वही खरीदते हैं, उनको क्या लगता है ये अच्छा है, बड़ा दिख रहा है। तो बड़ा दिखने वाला वही मोह बोलते हैं ना, मोह का मतलब जो अच्छा नहीं है वो अच्छा लगता है, ऐसे। तो ये हिरण्यकशिपु इस तरह प्रकृति को तो तोड़-मोड़ कर ये सब कर रहा था। सारे दुनिया को घोषणा कर दिया उसने, ओम हिरण्यकशिपुवे नमः बोलो सब लोग ऐसे। सब लोग डर के मारे ऐसे कर रहे थे। देवी-देवता आते थे उसके पास, भेंट उसके सामने रख रख कर हाथ जोड़ते थे, चिल्लाता था, वो भाग जाते थे वो लोग, हैं? अपने मुकुट उसके पाँव में रखते थे ऐसे, हैं? तो ऐसे बड़ा राजा सारे दुनिया के, सब लोग उसके नाम लिया, लेकिन एक 5 वयस का बालक नहीं लिया उसका नाम। कौन था उसका नाम? प्रहलाद। इतना नाराज हुआ, बोला कि अरे ये मेरा बेटा है, असुर का बेटा असुर बनना चाहिए मेरे जैसे। उसने गुरुकुल में भेजा, उसको अनेक ट्रेनिंग वगैरह दिया, लेकिन बेटा तो सुधरने वाला नहीं था। वो नारद मुनि के प्रचार प्राप्त करके वो महान भक्त बन गया है कृष्ण की। तो वो मना किया, बोला कि पापा आप भगवान नहीं हैं, भगवान वासुदेव हैं। भगवान वासुदेव ही सबके स्वामी हैं, मेरे स्वामी, आपके भी स्वामी हैं। सत्य बात बोल दिया। उसको मारने के लिए क्या-क्या उपाय ढूँढा हिरण्यकशिपु ने। उसको पिटाई किया, बहुत पिटा करके मारने के लिए प्रयत्न किए, मार नहीं पाए, खुद ही मर गया वो, हाँ। सो दिस इज़ अ टेंडेंसी टू बिकम एंग्री एंड हेटफुल टुवर्ड्स अदर्स, एंड देन वी हैव अ टेंडेंसी टू वांट टू बीट अदर्स, हाँ। सो टू कैच, टू लूट एंड टू बीट आर द 3 इम्प्यूरिटीज ऑफ द माइंड, हाँ। हमारे मन के 3 मलिनता क्या है? जो चीज़ पकड़ना नहीं चाहिए उसको पकड़ने की इच्छा करना। और जैसे मैं रावण का उदाहरण दिया, अभी जो शूर्पणखा है, शूर्पणखा जब लंका में, सॉरी, नासिक में पहुंच गई पंचवटी में, तब उन्होंने प्रभु रामचंद्र को देखा, बहुत आकर्षित हो गए।
तो उन्होंने अपने वेशभूष बदल दिया, एकदम खूबसूरत स्त्री के रूप में गई वो। तो प्रभु रामचंद्र के साथ बात किया, बाद में पता चल गया कि वो, उन्होंने बोला कि मैं विवाहित हूँ, मैं तुमको विवाह नहीं कर सकता, एक पत्नी व्रत धारण किया मैंने। लेकिन मेरा भाई आया है लक्ष्मण इधर, अभी मेरे मेरे सेवा के लिए आया है बेचारा, लेकिन अकेला है, इसलिए उससे विवाह कर लो करके उन्होंने बोला, मजाक करने के लिए। तो उसके पास पहुंच गई, ये बोली दोनों खूबसूरत दिख रहे हैं, दोनों में एक भी चलेगा है, ऐसे बोल रही थी। मतलब क्या, वो कामुक थी वो भी, है ना, ऐसे। तो बाद में वो समझ गया कि दोनों विवाह नहीं कर रहे हैं, ये सीता आ गई, सीता के कारण मैं प्रभु राम से मुझे स्वीकार नहीं रहे हैं। तो उसकी ओर क्रूर आंखों से देखा उसने, है। तो उसने क्या सोचा कि सीता को मार दूंगी, है, ये मार दिया तो वो चली जाएगी। प्रभु रामचंद्र ने बोला एक पत्नी व्रत, उनका एक पत्नी मैं बन जाऊंगी, है? ऐसे वो सोच रही थी, सीता को खत्म करके मैं बन जाऊंगी ऐसे। तो पहले लेकर आई काम, लेकर आई थी, लेकिन लक्ष्मण को देखने के बाद दोनों की ओर आकर्षण हो गया। वो क्या हो गया, लोभ हो गया। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, सीता को देखकर क्या आ गया, तीनों आ गया उसमें। अब देखें तीनों व्याधि है, मन की व्याधि है। इसके कारण उनका नाक भी काटा, कान भी काट कर भगाया गया उसको। इस दुनिया में हम देखेंगे ये मलिन अवगुण होते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज ने उनको तुलना किया ये जो कुत्तों से है, उसको भगाने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, हाँ, तो वो बता रहे थे कि ये लाठी किसने दिया, वो साधु ने दिया। तो साधु का संग ही हमको इन दूसरे के विकारों से ऊपर उठाता है, ये बात उन्होंने बताया। इसलिए साधु संगति में आना बहुत आवश्यक है। सब लोग एक श्लोक बोलिए, यजदुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम, आपको 3 चीज को त्याग देना चाहिए। जो लोग आपके अंदर गंदगी डालेंगे उनको छोड़ देना चाहिए। और जो गंदगी वातावरण है, जैसे क्लब्स वगैरह होता है जिधर ऐसे लोग जुड़ते हैं जो शराब पीते हैं, नशा लेते हैं और गलत काम करते हैं, उधर जाना ही नहीं चाहिए, वर्जित जगह में जाना नहीं चाहिए। और तीसरा है गलत आदतें जिनको हमने पहले से पकड़ लिया है, अभी हमारे पास है। उदाहरण के लिए आलसीपन करना एक बुरा आदत है, करेक्ट है ना। हाँ, इस तरह कुछ गलत आदतें हो हमारे में, उन आदतों से छूटकर ऊपर उठने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए एक व्यक्ति को, तीनों से। गलत आदतें, गलत लोग, गलत वातावरण, तीनों को त्यागना चाहिए। तो दूसरा बोल रहे हैं त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। साधु संतों की सभा में आओ जिधर चर्चा होता है शास्त्रों के संबंध में, हरे कृष्णा, भगवान हरि कथाएं, और हमारे मन को ऊपर उठाने वाले बातें होता है उस सभा में। कैसे हम अपने इंद्रिय और मन को संयमित करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं, चित्त को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, और हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान की लीला कथा इत्यादि श्रवण करके उनमें रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की संगति मिले तो उस संगति में आकर जुड़ना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे 2 लोगों का उदाहरण लेंगे हम। अभी कर्ण जो था वो दुर्योधन के मित्र बना। क्यों मित्र बना? क्योंकि दुर्योधन ने उनको अंगदेश का राजा करके घोषणा किया। तब उनकी अपमान होने वाली थी। उस सभा में सब लोग देख रहे थे। उस समय उन्होंने अंगदेश का राजा करके उनको ये जो आचमन देकर उनको ऐसी घोषणा की उन्होंने। तब कर्ण ने बोला, हे दुर्योधन, मेरे मान बचाया तुमने, इसलिए मैं तुमको मेरे श्रेष्ठतम मित्र मानता हूँ, मैं हमेशा तुमको साथ दूंगा। करेक्ट है ना? उनके साथ रहा वो। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला दुर्योधन के व्यवहार ठीक नहीं है, शकुनी के व्यवहार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों की बात कर्ण को भी अच्छा नहीं लगा। उसने बोला इन लोगों को, अरे आप लोग युद्ध क्रीड़ा करके क्यों जीतना चाहते हो? ये तो कायर लोगों के काम है। हमको युद्ध करके जीतना चाहिए। अगर पांडवों का आप सोचते हो कि पांडव आपके दुश्मन हैं, उनको बोलो ये युद्ध करके तुम जीत सकते हो। ये लोग बोले युद्ध में हम उनको जीत नहीं पाएंगे, कुछ तो
शॉर्टकट लेना पड़ेगा। हाँ? वो लोग बोले, कर्ण को अच्छा नहीं लगा शुरुआत में, लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि सोचा कि दुर्योधन को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ? इसलिए बोला ही नहीं उसने। लेकिन बाद में समय तो बढ़ता गया, आप लोग जानते हो कुरुक्षेत्र में युद्ध मच गया कुरु पांडवों में। उस समय आप देखेंगे एक समय कृष्ण आए थे शांति दूत के रूप में। हाँ? तो होने के बाद वो शांति दूत के रूप में जब आने वाले थे, तब धृतराष्ट्र को डर हो गया कि ये कृष्ण आकर युद्ध को रोक देंगे। हाँ? अगर रोक दिया तो कुछ अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, समझौता कर देंगे दोनों के बीच में। हाँ? पांडव कुरुओं के बीच में, तो मेरे बेटों को सिर्फ आधा राज्य मिलेगा और पांडव लोग आधा ले लेंगे। हाँ? ये अच्छा नहीं है, पांडवों को मिटा देना चाहिए और मेरे पुत्र राज्य को अपनाना चाहिए। इसे इच्छा किसको थी? धृतराष्ट्र को ऐसी इच्छा थी। तो उसने क्या बोला सभा में दुर्योधन को, दुर्योधन अभी केशव, भगवान केशव आने वाले हैं इधर। हाँ? हमारे शहर की सीमा में बहुत अच्छी तरह रंग बिरंगे रंगोलियां बनाया जाए। हाँ? और अनेक स्त्रियां जाकर उधर नाच कर उनको स्वागत करे। और उनको एक सोने का रथ भेंट में दिया जाए, अनेक हाथी, अनेक घोड़े और अनेक ब्लैंकेट्स और अनेक नवरत्न और अनेक आभूषण उनको दिया जाए कृष्ण को। और ये सब देकर उनको राज सम्मान के साथ स्वागत करके लेके आकर सबसे बेहतर जो महल होगा, जो था दुशासन का था एक महल बड़ा, उधर उनको गेस्ट हाउस में उधर उनको वास करने के लिए व्यवस्था किया जाए। इस तरह अगर हम सब एकदम ठीक ठाक करेंगे, जब कृष्ण शांति दूत के लिए आएंगे, हमारे बात हम जो बोलेंगे उसको मानेंगे। हम बोलेंगे युद्ध करना ही है, वो युद्ध स्वीकार लेंगे, वो युद्ध को रोकेंगे नहीं। ऐसे उन्होंने बोला। ये बात सुनकर विदुर ने बोला, भैया अगर तुम कृष्ण को खुश करना चाहते हो, ये तरीका नहीं है। कृष्ण को खुश करना हो, वो जो बोलेंगे तुमको वो करो। अगर वो बोलते हैं युद्ध को रोको, तो युद्ध को रोक देना। अगर वो बोलते हैं युद्ध करो, तो करना चाहिए। तुम इस तरह कुछ धोखाबाजी करके उनका अपने पक्ष में लाने के लिए यत्न मत करो, क्योंकि भगवान सबसे बड़े बुद्धिमान है। सब लोगों का बुद्धि उनसे ही आता है। हमारा बुद्धि उनका बुद्धि का अंश है। इसलिए आप उनको धोखा मत दो, ये हो नहीं पाएगा। तो धृतराष्ट्र बोले, जो विदुर बोल रहा है वो भी सही है, उनको समझा नहीं पाएंगे, ऐसे सोच रहे थे। तो दुर्योधन बोला, पापा मैंने एक उपाय ढूंढा है। जब कृष्ण आएगा इधर शांति दूत के रूप में, मुझे मालूम है सब सारे पांडवों का शक्ति जो है ये कृष्ण है। जैसे एक पेड़ जो होता है उसका शक्ति किधर से मिलता है? मूल से मिलता है। अगर पेड़ को मूल से काट दिया जाए, सारे पेड़ सूख जाएगा। इसलिए मैं कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए एक योजना बनाया हूँ। जब कृष्ण आएंगे, चारों दिशा में हजारों सैनिक आएंगे, हाथ में हथेली इत्यादि लेकर आएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। ऊपर से भी एक पिंजरा गिरेगा नीचे, कृष्ण को गिरफ्तार कर देंगे और छोड़ेंगे ही नहीं हम। इधर ही रखेंगे तो पांडव लोग क्या करेंगे? वापस जंगल में चले जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे दुर्योधन ने बोला। ये बात सुनकर भीष्म पितामह बहुत नाराज हुए। ये बोले, अरे मूर्ख, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम निपट मूर्ख हो। क्योंकि कृष्ण कुछ ही दिनों में उनके अवतरण होने के बाद पूतना नाम के एक राक्षसी को उन्होंने मारा, बहुत बड़े राक्षसी को। उसके बाद कितने कितने असुर गए वृंदावन में, तृणावर्त हो, शकटासुर हो, ऐसे अनेक। 5 वयस में उन्होंने एक पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासियों को आश्रय प्रदान किया, क्या बोलते हैं, गोवर्धन लीला। 7 वयस में उन्होंने गोवर्धन उठाया। 5 वयस में कालिया नाम के नाग के ऊपर नाचा उन्होंने। क्या क्या किया उन्होंने? तुम क्या सोच रहे हो अपने बारे में? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब ऋषि मुनियों के लिए पूजनीय है, सारी दुनिया के जीवों के लिए वंदनीय है। ऐसे भगवान केशव जो सबके स्वामी हैं, उनको तुम गिरफ्तार करोगे? कितना बड़ा मूर्खता है, सोचना भी बड़ा अपराध है। ऐसे बोले। तो उसके बाद सभा पूरी हो गई उस दिन। अगले दिन जब भगवान कृष्ण आए, तब शांति दूत का प्रस्ताव रखने वाले थे भगवान। तब दुर्योधन ने बोला, हे कृष्ण, आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलो हम पहले खाते हैं, उसके बाद मीटिंग लेते हैं। भगवान ने बोला, नहीं, मीटिंग पहले लेना आवश्यक है, भोजन बाद में।
वो बोला नहीं नहीं नहीं, अभी गरम गरम बना कर रखा, पहले खा लो, बाद में मीटिंग कर सकते हैं। भगवान बोला देखो, अगर कोई भूखा है वो खाएगा, नहीं तो प्रेम से दिया जाता है वो खाएगा। तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं, मेरे पेट में भूख भी नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं खाएंगे। मुझे तब खाने के लिए अच्छा लगेगा जब मेरे प्रस्ताव को आप लोग स्वीकारते हो। ऐसे मना कर दिया उन्होंने। तो इसलिए हम ये गीत में गाते हैं, दुर्योधन के भोग न खायो, रोक साक विदुर घर कायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। और प्रेम के पुजारी हैं। तो उसके बाद भगवान सभा में प्रवेश किया। उधर सात्यकी कृतवर्मा दोनों यदु दोनों बाजू में थे भगवान के। तो सात्यकी ने भगवान के कान में बोला कि मैंने सुना कि दुर्योधन ने कुछ षड्यंत्र रचा कर रखा है आपको पकड़ने के लिए, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराया, हे सात्यकी, सारे दुनिया के 33 कोटि देवता जुड़कर भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। ये छोटा बच्चा दुर्योधन क्या करेगा, मजाक देखेंगे क्या करता है आज, ऐसे बोले भगवान। बैठ गए, तो शांति दूत का प्रस्ताव रखा। वो होने के बाद दुर्योधन धृतराष्ट्र वो सहमत नहीं थे वो लोग। दुर्योधन ने खुला खुला बोल ही दिया, हम इससे कुछ नहीं है। उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज ने जो बोला था 5 गांव का प्रस्ताव वो भी रखा। ये बोला सुई के ऊपर जितना बैठेगा उतना भी नहीं दूंगा, बोला युद्ध करके मैं जीत लूंगा। ऐसे उस समय ताली बजाकर उसने सब सैनिकों को बुलाया। अचानक चारों दिशाओं से हजारों सैनिक आए, ऊपर से पिंजरा भी गिर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने एक विश्वरूप दर्शन दिखाया, जिसमें विष्णु जैसे ही था वो रूप, जमीन से आसमान तक। उनके आंखों से अर्जुन और बलराम निकले हैं, ऐसे उनके सर से उनके वक्षस्थल से ब्रह्मा निकले, सर से शिव जी निकले हैं, और 5 पांडव उनके पीछे थे, और अनेक लोकपाल वगैरह उनके कंधों में बैठे थे, जैसे यमराज, जैसे वरुण इत्यादि हैं। और सब देवी देवता फूल की वर्षा कर रहे थे, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, पाही माम रक्षा माम। ऐसे आसमान से तारे नीचे गिर रहे थे, समुद्र की लहरें बड़े उठ रहे थे, और अनेक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था आसमान में है। तो ये सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, संजय क्या हो रखा है, मतलब आवाज तो सुन रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है बताओ। बोले कि भगवान कृष्ण एक अद्भुत दर्शन दिखा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, सब लोग साक्षात अष्टांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनको, सब लोग झुक रहे हैं। अब उन्होंने विनती की, हे केशव, मुझे भी आंख दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर रूप को देख सकता हूँ। तथास्तु बोला भगवान ने, तुरंत धृतराष्ट्र को आंख मिल गए। तो धृतराष्ट्र ने भी वो अद्भुत रूप देखा, वो भी दंडवत प्रणाम किया। होने के बाद धृतराष्ट्र ने बोला कि इतने सुंदर रूप जो मैंने देखा, अभी मेरे आंखों का वापस दे लीजिए ताकि मैं सदा इसका स्मरण करूं। ऐसे प्रार्थना किया और उनके आंख वापस बांध दिया, अंधे हो गया उनका। तो इसके बाद सब भगवान वापस आ गए और बैठ गए, कृतवर्मा सात्यकी वो भी बैठ गए। अब दुर्योधन ने देखा ये सब चीज देखकर अपने कर्ण को पूछा, उसने क्या जादू दिखा रहा है कृष्ण, ऐसे बोल रहा था। ऐसे देखने के बाद क्या पूछा, क्या जादू दिखा रहा है। उसको अकल नहीं था समझने के लिए कि परम भगवान है, परम सत्य है। तो उस समय जब भगवान उधर से लौट रहे थे, तब कर्ण गया था उनको छोड़ने के लिए। तो शायद आपने पढ़ा होगा मैथिली शरण गुप्त करके एक बहुत बड़े लेखक, उन्होंने रश्मि रति करके किताब लिखा, बहुत सुंदर किताब है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, ऐसा होता है। स्वच्छ चांदनी पिची हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हर्त तृणों की नोकों से। सुंदर गीत है वो। उसमें लिखते हैं, आप पढ़ेंगे, जो गए भगवान इनको लेकर, वो कर्ण को अपने रथ में बिठा लिया भगवान ने। कर्ण को बोले, हे कर्ण, क्या तुमको पता चला कि तुम पांडवों से श्रेष्ठ पांडव हो, ज्येष्ठ पुत्र हो कुंती के। वो कर्ण ने बोला, हाँ मुझे अभी भी पता चला है, कुछ ही समय के पहले। हाँ, तो भगवान बोले, तुम पांडव होकर पांडु के चरित्रवान पांडु जो था उसके पता चलने में तुमको चलना चाहिए। हाँ, और इस तरह के धूर्त दुर्योधन जो है, जो दूसरे की पत्नी को परस्त्री को
सभा में लेके आकर सबके समक्ष अपमानित करने के लिए यत्न किया। ऐसे लोगों का संग तुमको नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम पांडवों के साथ रहो और इस रणभूमि में पांडवों के पक्ष में तुम आ जाओगे, तो तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है तुम्हारे लिए। हाँ? और सतपथ को पकड़ नहीं चलना चाहिए। भगवान ने उनको सद्बुद्धि देने के लिए यत्न की। तो तब कर्ण ने बोला कि मैं इतने साल अनेक साल 14 साल लगभग मैंने ये खाया हूँ, उनका नमक खाया हूँ, दुर्योधन का, उनके मित्र रहा हूँ, उनको छोड़कर मैं परापक्ष में ज्वाइन करूंगा तो ये तो धोखा देने के बराबर है, ये सही नहीं रहेगा, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, तो भगवान ने बोला ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्योंकि यू आर इन द क्रॉस रोड नाउ, यू हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ। ऐसे ये बोल रहा है कि मित्रता बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कर्ण दुर्योधन का, दुर्योधन ने कर्ण को बोला जब भीष्म पितामह सामने लड़ाई करते हैं, हाँ, वो हमारे सारे कमांडर इन चीफ है, करेक्ट है ना, हाँ, वो सेनापति है, तुम भी युद्ध में जुड़ो ताकि तुम्हारा शक्ति उनका शक्ति दोनों जुड़कर बहुत अच्छी तरह हमको विजय प्राप्त हो सकता है। लेकिन कर्ण ने बोला नहीं, जब वो लीडर है मैं अंदर नहीं घुसूंगा, हाँ? जब वो बाहर निकलेंगे तब हम जाएंगे। बार बार दुर्योधन ने विनती की लेकिन मना किया। ये किस तरह का फ्रेंडशिप है, हाँ? ये फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर वो असली फ्रेंड होता था उसको क्या बोलना चाहिए कर्ण को, मेरा ईगो प्रॉब्लम है भीष्म के साथ, फिर भी मेरे फ्रेंडशिप के लिए आपके लिए मैं जाऊंगा, ऐसे जाना चाहिए था ना, वो गया नहीं हुआ। It's not that he was such a great friend that he was ready to put aside his false ego and go for the battle. He didn't go. हाँ? लेकिन इधर बोल रहा है भगवान कृष्ण को वो मेरा फ्रेंड है, इतना नमक आया उसका मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, सोच रहा था। तो वो अपने रथ में चढ़ गया, कर्ण निकलने ही वाला था। तब ऐसे मुड़कर देखा भगवान कृष्ण उनके रथ में खड़े हुए थे, ऐसे भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान को देखकर उसके मन में विचार आया कि ये जो बोल रहे हैं सही है। भगवान कृष्ण जो होते हैं सबकी भलाई सोचने वाले हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सब जीवराशियों के परम पिता हैं। तो ये जो मेरे लिए बोल रहे हैं मेरे लिए अच्छा है, मालूम है कि अच्छा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो मन जिद्दी कर रहा है। क्योंकि उसको दुर्योधन के साथ मैत्री है और अर्जुन के साथ एक तरह का विरोध है। इसके कारण क्या हुआ, वो मुड़कर चला गया और कौरवों के पक्ष में रहा, और आप लोग जानते हो क्या हुआ, अंत में वह मर मिटा हुआ। इसके एकदम विरुद्ध आप उदाहरण देख सकते हैं विभीषण का। विभीषण जो है वो रहता था रावण के सभा में, विभीषण के लिए बहुत बड़ा महल भी था, और राजा सम्मान था उसका भी, क्योंकि राजा का वो भाई है, राजा सम्मान भी था उसको, बड़ा महल भी था, सुख सुविधा था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। एक दिन सभा में सब लोग बैठे थे, उस समय विभीषण भी था उधर, सब मंत्रियां रावण के हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि डरते थे अगर कुछ विरुद्ध बोलेंगे तो मार देगा हमको, इसलिए हमें हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे वो। लेकिन विभीषण पहले से बोलते आया है रावण को ये सही नहीं है। आपको मालूम है रावण के दो भाई हैं, कुंभकर्ण और विभीषण। ये कुंभकर्ण जो था वो तो साल में 6 महीना सोता था, करेक्ट है ना, उनको एक श्राप था ऐसे। एक्चुअली तीनों ने तपस्या की, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ब्रह्मा के लिए तपस्या की। जब ब्रह्मा आए, रावण ने बोला कि मैं ऐसे राजा बनो, कोई मुझे पराजित नहीं करना चाहिए, मुझे सोना चांदी होना चाहिए, सब धन दौलत मांगा, ऐश्वर्य मांगा, पदवी मांगा, यश मांगा, शक्ति मांगा, ये सब मांगा उसने। और कुंभकर्ण निर्देवत्वम ये वरदान मांगने वाला था। निर्देवत्व मतलब मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि सारे देवताओं को मैं खत्म कर सकता हूँ, ये मांगने वाला था। सब देवताओं को पहले से पता चल गया, प्रीमॉनिशन, दे ऑलरेडी हैड आइडिया दैट दिस फेलो इज गोइंग टू आस्क। तो वो सब जाकर सरस्वती के पांव पकड़े, बोले सरस्वती अगर ये बोल देगा निर्देवत्वम, ब्रह्मा जी तदास्तु बोल देंगे तो हम लोग गए, हम लोग मर जाएंगे, आप इसके जिह्वा को ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए, कुछ गलत मांग देगा। सरस्वती ने ऐसे किया, इसलिए निर्देवत्वम बोलने के बदले निद्रत्वम बोल दिया उसने, इसलिए उसको निद्रत्वम मिला उसको। निद्रा निद्रत्वम का मतलब है स्लीप। तो ब्रह्मा ने बोला तदास्तु,
तो हमेशा तुम सोते रहोगे जीवन भर। उसके बाद वो डर गया, वो है ऐसा हमको सोना नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, वरदान तो हम ले नहीं दिए, दे दिया एक बार तुमको, 6 महीना तुम सोओगे, 1 दिन के लिए उठोगे, हैं? उसके बाद वापस 6 महीना सोओगे। ऐसे ऐसे हो गया उसका। और विभीषण जो था उसने क्या वरदान मांगा ब्रह्मा से, इस दुनिया में हम लोग अनेक बार हम सज्जन रहते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थिति आता है हम सतपथ को छोड़कर कुपथ को पकड़ते हैं। मेरा आपसे विनती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं सत्यपरायणता को कभी न त्यागूं। ये वरदान मांगा किसने? विभीषण ने। देखिए तीनों को, इसलिए आप देखेंगे रावण है रजोगुण, कुंभकर्ण है तमोगुण, और विभीषण सत्वगुण। इसलिए हमें सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। जितना सत्वगुण को बढ़ाएंगे हम सतपथ में चल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे वरदान मांगा था। इसलिए क्या कर दिया विभीषण ने, सभा में बोल दिया, रावण भैया मैं मानता हूं आप बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो, आपके अंदर अनेक अच्छे गुण हैं, लेकिन आपका एक बड़ा गलती है। क्या गलती है? आप अपने पेट में आग को बांध कर आए हो। उन्होंने पूछा क्या बोल रहे हो? सीता आग के बराबर है, वो आपको जला देगी पूरा, क्योंकि परस्त्री को आपको माता के रूप में देखकर पूजा करना चाहिए, है इस तरह गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। इसे उन्होंने चेतावनी दी उनको। ये सुनकर रावण एकदम कुपित होकर लात मारा अपने पांव से। एक पिक्चर भी है मेरे पास जो रावण लात मार रहा है। कंब रामायण में एक गीत आता है इसके बारे में, है बोला कि अरे भाई भैया सब लोग मेरे बात मान रहे हैं सिवाय तुमको छोड़कर, निकल चलो इधर से, है मेरे चेहरे को भी मत देखो, ऐसे बोला उसने। तब तत्क्षण उधर से निकल गए कौन? विभीषण। है अपने बड़े महल को छोड़ दिया, है अपने सुख सुविधा ऐश्वर्य पदवी सब कुछ त्याग दिए। आप जरा सोचिए, आपके मन में यू कीप ये तराजू जो है उसमें रखिए, आपके लिए बड़ा महल है, राज सम्मान है, धन दौलत है, पदवी है, ये सब है, और दूसरी ओर अभी आप भिकमंगे होकर जाना पड़ेगा आपको, खाली हाथ के साथ। कितने लोग तैयार रहेंगे इस दुनिया में? अनेक लोग हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार रहेंगे, करेक्ट है ना? लेकिन ये सब छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने उनके बारे में सुना एक बार, ये विभीषण जब हनुमान लंका में उड़ रहे थे, अलग अलग महल में देखते थे क्या हो रहा है उधर। तो विभीषण के महल में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। तो दीवार में उन्होंने लिखा था राम 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 राम, सब जगह लिखा था। कहीं भी दीवार में देखो उधर क्या लिखा था? राम राम लिखा था ऐसे। तो एक दिन रावण आ गया उसके महल में, राम नाम देखकर नाराज हो गया वो। अरे राम का नाम लिखकर रखे हो सब जगह, इधर राम राम राम, ये क्या चल रहा है? ये लंका है। वो बुद्धिमान था। विभीषण बोला भैया आपको मालूम नहीं, रा का मतलब है रावण, माँ का मतलब मंडोदरी, आप दोनों का ही नाम लिखा, आपका ही स्मरण कर रहा हूँ, ऐसे बोला। रावण खुश हो गया, बोला सारे लंका में लिख दो ऐसे, बोला ऐसे। इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह हनुमान ने देखा कि विभीषण किसका भक्त है? प्रभु रामचंद्र का भक्त है। वो जानता था। तो प्रभु रामचंद्र के पास आप पहुंच गए हैं। उसके बाद अनेक वानरों को पूछा भगवान ने, लेकिन अंततः भगवान ने बोला मैं स्वीकारूंगा तुमको, अपने पक्ष में ले लिया भगवान ने। बोलने का मतलब क्या है? कठिन परिस्थिति में भी विभीषण सतपथ को पकड़ कर चला, वो कुसंग को त्याग दिया, सत्संग को पकड़ लिया, वो करेक्ट है ना? लेकिन कुंभकर्ण ने बोला अपने भाई को, भैया रावण आप जो कर रहे हो सही नहीं है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया संस्कृत में, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, आप जगत जननी को लाए हो, ऐसे बोला उन्होंने। जगत जननी का मतलब शी इज द मदर ऑफ द होल यूनिवर्स। हम बोलते हैं ना, माता समस्त जगताम मधुकैट भारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिनी शत जन प्रियदानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम अरविंदलोचने भवतु प्रसन्न मुखचंद्र मंडले विधिशंकरेन्द्र वनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे। तो इधर बताया गया कि माता समस्त जगताम, सारी दुनिया की माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी को लाया हो भोगने की भावना के साथ, ये बड़ा गलती है भैया। मैं, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं लड़ूंगा, अगर मैं युद्ध में मरूंगा तो आप सीता को लौटा देना प्रभु रामचंद्र के पास, क्योंकि मैं मर गया तो बस आप राम को जीत नहीं पाओगे आप, दे देना। तो वो तो युद्ध में मरा, कौन?
कुंभकर्ण। उसके बाद क्या रावण ने दे दिया क्या सीता को? नहीं दिया। विनाश काले, हाँ, प्रीत बुद्धि, रजोगुण कैसे होता है। तो इस तरह हम विभीषण एक और दूसरी ओर कर्ण, इन दोनों को तुलना करके हम देख सकते हैं। कर्ण कुसंग में पढ़कर मर मिटा, विभीषण सत्संग को पकड़कर वो उसका यश बढ़ गया, भगवान का महान भक्त बना और भगवान उसको स्थापित भी किया राजा के रूप में, और वो सही पथ में गया वो। तो हमारे जीवन में भी इसलिए बताया गया, तज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। ऐसे साधु संग में आना चाहिए हम लोग, आकर गीता भागवत के ऊपर प्रवचन सुनना, महाभारत रामायण को सुनना, इन चीज़ों को सुनकर समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीखना बहुत आवश्यक है। और तीसरा है कुरु पुण्यम अहोरात्रम, सिर्फ कथा मात्र श्रवण नहीं करना चाहिए, वो करने के बाद कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात आपको पुण्य अर्जित करना चाहिए। ये पुण्य क्या है? उसमें दो तरह के पुण्य हैं, भौतिक पुण्य है, आध्यात्मिक पुण्य है। भाई भौतिक पुण्य जो है और भौतिक पाप जो है, दोनों कट जाता है, हाँ? आप देखेंगे अगर आपने 1000 पुण्य काउंट मिला आपको, स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म दिया, नहीं तो आपने किसी को भोजन परोसा, नहीं तो समर के सीजन में आपने पानी दिया किसी को, ये सब किया आपने, ये सब चीज़ के लिए आपको पुण्य मिलने वाला है आपको, हाँ? लेकिन ये भौतिक पुण्य है। तो आप स्वर्ग जाओगे और पुण्य का काउंटडाउन होगा, 5 4 3 2 1 0, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, धरती में आ जाओगे आप, हाँ? आपने पाप किया, हम नरक में जाते हैं, पाप दंड भोगते हैं, -3 -2 -1 0, अब धरती में आ जाओगे। ये दोनों ऊपर नहीं चला जाता है, दोनों एक ब्रह्मांड के अंदर ही है। लेकिन भक्ति सुकृति का मतलब है भगवान के लिए किया हुआ कार्य जो होता है, जैसे नाम जप करना, उसमें 5 चीज मैं आपको बताऊंगा, हाँ, ABCDE। ए फॉर एसोसिएशन, अभी हम लोग बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये एसोसिएशन है। बी फॉर भगवत गीता, नहीं तो भागवतम, हर दिन एक पृष्ठ पढ़ लीजिए आप 5 मिनट में। प्रातः काल में उठकर भगवान को दिया जलाना, एक फूल चढ़ाना और बैठकर एक पेज पढ़ लेना, हाँ? एक पेज बड़ी बात नहीं है 5 मिनट में पढ़ना। हम लोग कितना समय बिताते हैं व्हाट्सएप के साथ, कितना समय बिताते हैं फोन के साथ, करेक्ट है ना? इसमें 5 मिनट एक पेज पढ़ लेना बहुत मुश्किल नहीं है। अब सी फॉर चैंटिंग, तो चैंटिंग मतलब है नाम जप। ये नाम जप से बहुत शक्ति मिलेगा आपको, योर इनर स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मणि में एक मंत्र है, दूसरे मणि में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से माला में 108 मणि है इसमें, हाँ? 108 बार आपको करने के लिए 8 मिनट से 10 मिनट लगता है बस, हाँ? कभी भी कर सकते हो आप, दिन में रात में कभी भी। तो एक बार मैं एयरपोर्ट में था, मैं सोचा कि एक फ्लाइट हमारा डिले हो गया, वो बारिश का मौसम था, हाँ? फॉग के कारण वो लोगों ने डिले कर दिया 2-2.5 घंटा। तो मैंने सोचा थोड़ा शांत जगह जाकर हम थोड़ा नाम जपेंगे। ऐसे ढूंढते हुए गया, एक बोर्ड लिखा था उधर, प्रेयर रूम। ऐसे शुरू हुआ, अरे एयरपोर्ट में भी मंदिर है, हाँ? प्रेयर रूम रखा है। सोचा कि अंदर कुछ मंदिर होगा, चलो देखते हैं। अंदर गया, कुछ मंदिर कुछ नहीं था, खाली रूम ही था वो। लेकिन उधर एक मुसलमान बैठकर नमाज कर रहा था, हाँ? और उसके पास ये भी था, माला भी था, लेकिन उसका माला ग्लास जैसे दिख रहा था उसका, हाँ? वो भी ऐसे घुमा रहा, नाम जप रहा था वो भी शांत होकर। और उसके निकट और एक क्रिश्चियन बैठा था, वो भी माला घुमा रहा है, हाँ? वो हेल मेरी बोल रहा था वो। तो मैं भी उसके निकट बैठ गया, मैं भी चालू कर दिया हरे कृष्ण, हाँ? हम तो उस दिन मुझे तुरंत समझ में आ गया कि हर धर्म में माला घुमाना और भगवान का नाम लेने का प्रक्रिया है। जैसे जैन लोग नमकार मंत्र करते हैं, बुद्धिस्ट लोग नमो अभिदा बुत्सु वो भी करते हैं, सब लोग करते हैं। क्योंकि ये माला क्यों रखा है? क्योंकि सेंस ऑफ टच देता है, हाँ? स्पर्श करने से एक मणि के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा,
हाँ, इसमें बहुत शक्ति है। जैसे हमारे एक सीनियर वक्ता बोलते थे, इसमें जो शक्ति है ये एक गन जैसा है, बोलते थे ये गन है और ये बुलेट है। हाँ, बुलेट ऐसे माया को शूट कर सकते हैं आप। हाँ? अगर आप जप करोगे तो माया को शूटिंग करके उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलेगा आपको जप करने से। जप करने से क्या होता है, आपके टॉलरेंस बढ़ जाएगा आपका। आपके पेशेंस, सहिष्णुता बढ़ेगा। आपके धैर्य, धैर्य का मतलब आपको, धैर्य का मतलब है पेशेंस। आपके पेशेंस बढ़ेगा, आपका नम्रता बढ़ेगा। आप दूसरे जीवों को आदर देने की आदत वो बढ़ जाएगा। जितना आप नाम जपते जाओ। इसका कारण क्या है, क्योंकि नाम जब हम भगवान को कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे चित्त में बैठे हुए विकारों को शुद्ध कीजिए। अभी पहले क्लास के पहले मैंने बोला कुत्तों के बारे में, करेक्ट है ना? ये सब काम, क्रोध, मजलूम, मोह, मत्सरी, इन विकारों को शुद्ध करने के लिए ये नाम जप करते हैं। और नाम जप करने से शास्त्र बताते हैं, एक आईने में अगर धूल पड़ा है, एक गीला कपड़ा लेकर पहुंचने से क्या होता है, शास्त्र हो जाता है, आप चेहरे को देख पाओगे। इस तरह करता है मन को। अभी ये कपड़ा गंदा हो गया तो हम सुपर रिन डालते हैं, करेक्ट ना? अगर आपके कपड़े में बहुत इंक आ गया इधर, रिन से भी चलता नहीं, आप क्या करेंगे उसको, एक वैनिश करके आता है, करेक्ट है ना? वो डालने से वो भी निकल जाता है। अगर आपके पास तांबा का एक बर्तन है, वो साधारण सोप पाउडर से ठीक नहीं होगा, उसके लिए क्या इस करोगे, ये एक पीताम्बरी होता है। अब उसके लिए एक पाउडर भी आता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, वो पीताम्बरी होता है, तो उससे हम सफाई करते हैं। अलग अलग चीजों को सफाई करने के लिए अलग चीज है। इस तरह मन को सफाई करना कैसे निकालोगे आप, मन को निकाल सफाई करोगे, वो चैंटिंग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह 108 मणि कीजिए, एक हफ्ते करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कितने लोग एक हफ्ते ट्राई करने के लिए तैयार हैं? 1 वीक, 108 टाइम्स, वंस इन अ डे। ठीक है, आपको 10 मिनट देना है दिन में, एक हफ्ते के लिए कितने लोग दे सकते हैं? ठीक है, आप ट्राई करके देखें। तो जैसे कभी कभी कोई लड़का अगर बारिश के दिन मौसम में जोरदार बारिश आ जाता है सड़क में चलते समय, करेक्ट है ना? गाना घर आने के बाद ऐसे उनका काशी होता है, करेक्ट ना? मैं क्या करती है, एक विक्स से अपना ब्रेकर ऐसे लगाती है इधर, लगाने के बाद अंदर कुछ किच किच है ना, किच किच बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, वो डर जाता है अंदर, करेक्ट? क्योंकि ये विक्स से अपना डालने से वो मर जाता है, करेक्ट है ना? इसी तरह नाम जपने से आपके अंदर सब विकार किच किच वो सब डरेंगे। वो अरे सही मंत्र मिल गया इसको, अभी हम गए खत्म हो जाएंगे हम, सब विकार मिट जाएंगे, ऐसे चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसका एक श्लोक भी है, नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसे बताते हैं। नाम श्रुति से पुमान भवति निर्मल, मन निर्मल होता है, शास्त्र बताते हैं ऐसे अनेक बार। तो निर्मल होने के बाद हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए प्रीति जो है, जो अभी सुप्त अवस्था में है, वो जग जाएगा। जैसे अगर गरम गरम कोयला है, उसके ऊपर भस्म हो, गांव में कुछ लोग भस्म डालकर रखती हैं, कुछ माताएं, मालूम है आपको? सुबह रसोई में काम आता है ये कोयला, बाद में भस्म डालकर ढक कर रखती है, दोपहर को वापस यूज करने के लिए। दोपहर ऐसे करोगे तो भस्म निकल जाएगा और गर्म ही, और गर्म कोयला ऐसे ही रहता है। इस तरह आपकी जो भगवान के लिए प्रीति जो है, उसके ऊपर अभी ये विकार आ गए हैं, विकार को निकाल दिया आप तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से प्रेम जग जाएगा भगवान के लिए। तो कथा भी श्रवण कर रहे हैं आप, इसलिए ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भगवद गीता भागवतम, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डिवोशनल डाइट। जो भी खाते हो भगवान को भोग चढ़ाकर, माता सिखाएगी आपको, करेक्ट माता जी? शी विल टीच यू हाउ टू ऑफर भोगा। आपको कुछ भी बड़ी जानकारी की जरूरत नहीं है, 3 बार महामंत्र बोलकर, सर झुककर भगवान को थैंक यू बोलकर आप भोजन जो है उसको पा सकते हो। प्रसाद का मतलब है भगवान को शुक्रिया देकर जो हम खाते हैं, नहीं तो पाप खाते हैं हम। ऐसे गीता में भगवान बताते हैं, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, भगवान बताते हैं यज्ञ शिष्टा शेन संतो मुच्यन्ते। ये यज्ञ हो जाता है भोजन जब भगवान को देकर आप लेते हो। ये डिवोशनल डाइट। और 5वां ई जो है एंगेजमेंट इन सेवा, सेवा में कुछ जुड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा आज कार्यक्रम है, इसके लिए सबके लिए प्रसाद बनाना, वो एक सेवा है ना? नहीं तो हम लोग भगवत गीता स्कूल के बच्चों को भी वितरित करते हैं। जैसे गीता कंटेस्ट करके हमारे हैदराबाद मंदिर से 1 लाख गीता वितरित होता है हर साल।
तो कैसे वितरित करते हैं? 250 रुपीज गीता बच्चे खरीद नहीं पाते हैं, तो उनको 100 में देते हैं हम, 150 हम डोनेशन लेकर उसको सब्सिडी में देते हैं उनको। तो गीता कंटेस्ट में अनेक बच्चे भाग लेते हैं इस तरह। तो हम स्कूलों में जा रहे हैं, उसको शास्त्र दान बोलते हैं। आप खुद भी आकर आप बच्चों को दे सकते हो, आप अगर आपको देने की इच्छा होता है, इसे कर सकते हैं। तो इस तरह आप सेवा में जुड़ सकते हो, किसी भी सेवा में। इस तरह का हार बनाना वो भी एक सेवा है। भगवान को श्रृंगार करना एक सेवा है, भगवान को भोग चढ़ाना है, तो भगवान के लिए कीर्तन करना वो भी एक सेवा है। तो पांचवा ई जो है एंगेजमेंट इन सेवा। अभी बोलेंगे ए फॉर बी, सी, डी, ई, ये ही कुरु पुण्यम अहोरात्रम। ये करने से आपकी भक्ति सुकृति बढ़ेगा। भक्ति सुकृति का मतलब क्या है? ये कभी घटता ही नहीं है ये। जैसे हुंडी में आप हर एक दिन 1-1 रुपया डालते गए, आप आधा हुंडी भर गया, 2 साल छोड़ दिया आपने, वापस डालना चालू किया आपने, किधर से चालू होगा? जिधर आपने छोड़ा उधर से। भक्ति भी ऐसा है, पूरे जन्म में अगर आपने 50% भक्ति की, अभी अगले जन्म में विकावन से चालू करेगा आप। अभी आप लोग बैठकर सुन रहे हो क्योंकि आपको पूर्व जन्म में जो किया हुआ भक्ति प्रेरणा दे रहा है आपको समझने के लिए। नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे ये विषय, अभी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आगे और भी बढ़ सकती हो 70%, 80% तक। तो अगले जन्म में हम 81 से चालू करेंगे। अगर इसी जन्म में भक्ति तीव्रता से की तो 100% आपको मार्ग मिल जाएगा, आप भगवत धाम लौट जाएंगे, गोलोक से गोलोक वापस लौट सकते हैं। तो भक्ति सुकृति को बढ़ाइए, पुण्य पाप वगैरह घट जाएगा। लेकिन भक्ति आगे बढ़ना चाहिए। लास्टली बोलते हैं स्मर नित्यम अनित्यता, बोलते हैं लास्ट में। हमेशा याद रखो कि ये दुनिया क्षणभंगुर है। जो लोगों के पास काले बाल हैं अभी वो पक जाएगा, सफेद बाल बन जाएगा वह। जिनके पास एकदम क्लीन गाल बहुत सुंदर है लेकिन उधर झुर्रियाँ आ जाएंगे। जो लोग तरुण हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग बूढ़े हैं उनको श्मशान में लेके जाते हैं, वो राख बन जाता है उनका शरीर ऐसे। ये तो हम आंखों के समक्ष देखते हैं ये दुनिया में है। ये दुनिया क्षणभंगुर है, सब दुखालयम अशाश्वतम भगवान बोलते हैं। इसको भूलो मत, क्योंकि आप सबको मालूम है आपके शरीर कैसे था। एक छोटा शिशु था जन्म लेते ही, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद और बढ़ता है। तो शरीर ऐसे बढ़ता है, 40-50 के बाद घटता है। करेक्ट है ना? आपके भोजन भी पहले आप दूध पी रहे थे, उसके बाद चावल चपाती थे, ऐसे बढ़ता भोजन का। तो 40-50 होने के बाद भोजन बढ़ता है घटता है। ऐसे नहीं कि आप 4-4, 5-5 प्लेट खाते हैं उसके बाद है ना, वो घटता है ऐसे। शक्ति भी बढ़ता है 50 के बाद घटता है। क्यों ऐसा रखा है भगवान ने? ताकि हम लोग अपने आप को तैयारी कर ले कि मृत्यु आने के पहले अगर हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं तो हम शरीर छोड़ते समय डर ही नहीं होगा। आपको मालूम है कि यह शरीर तो एक पोशाक है आत्मा के लिए। शरीर को छोड़कर हम आत्मा सीधा भगवत धाम में पहुंच जाएगा वो। अगर आपको और एक शरीर भी मिले, वो भी भक्तों के घर में आपको पर शरीर मिलेगा आपको, जिधर आपको बचपन से अच्छा भक्ति होगी आपको। तो श्रील प्रभुपाद जी सारे भागवत के टीकाकारों के संस्कृत टीका को लेकर उन्होंने अंग्रेजी में करके छापा है भागवतम। तो आप लोग में अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में, ऐसे लगभग 20-25 भाषाओं में मौजूद है। तो गीता तो भगवान ने बोला अर्जुन को, और भागवत किसने किसको बोला, किसी को मालूम है? सुखदेव जी ने परीक्षित को बोला। उसमें प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष है, ये दुग्ध सागर में जो हुआ समुद्र मंथन लीला है, सीताराम की लीला है, लक्ष्मी नारायण की लीला है, राधा कृष्ण की लीला है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह उनकी लीलाएं हैं। ऐसे अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। आप लोग शायद इधर उधर थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, वो सब लीलाएं इधर प्राप्त होता है आपको। जैसे गोवर्धन लीला है, कालिया दमन लीला है। तो भागवत का पूरा आधार है भगवान, भक्ता और शुद्ध भक्ति। एकदम शुद्ध ग्रंथ है वो। तो आज हम कुछ लोगों को भागवत देने वाले हैं और कुछ लोग भगवद गीता लेने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुमूल्य समय निकालकर दोपहर के समय भी इतने बड़े मात्रा में आप लोग आए हो। हमारा मंदिर है इस्कॉन अबिड्स करके, अबिड्स में एक सुंदर मंदिर है, आप लोग आ सकते हैं। माता जी दिखाएगी, यू कैन ब्रिंग देम वंस इस्कॉन अबिड्स। तो मैं 1 हफ्ता आता हूँ उधर महीने में। आई कम इन द 3rd week, I come. First 2 weeks I'm in Pune, 3rd week I come here, 4th week I travel around to different places. I go 3 महीना में अमेरिका में भी जाता हूँ। तो हम लोगों का खास एक्टिविटी है धर्म प्रचार।
जिस तरह हमें आज प्रवचन दिया, इसी तरह का प्रवचन हम हजारों प्रवचन देते हैं, क्योंकि हम जनता को भगवान के साथ जोड़ना ही हमारा काम है। बाकी हमारी संस्था का दूसरा कुछ अपेक्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग इन दिव्य ग्रंथों को भगवान के भेंट हमारे लिए हैं, इनको पढ़े, नाम जपे और भक्तों के संगति में रहे, चित्त को शुद्ध करे, खुद को भी भलाई करे, सारी दुनिया को भी भलाई करे, ये हमारी अपेक्षा है। हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki. I can take one question. Is it getting late? I can take one question. Huh? Anybody has one question? कितने लोगों को समझ में आ गया मैं जो बोला? समझ में आ गया पूरा? आधा लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है। Actually, आप लोग तीन चीज कर सकते हैं. You can do three things. Either you ask a question or give a reflection or recollection. No? Recollect one example from what I spoke, or you can reflection from your life or a question. Namaskar, Guruji. Can I ask in English? Any language. English all right for me, yeah. I mean, it's just a confusion between karma and free will. Like whatever we are supposed to doing, it's a result of karma. Then the karma can be changed or things can be changed if we do corrections right now. See, whatever you are enjoying now, the facilities, amenities, that is due to your karma. Yep. For example, did you choose your parents or parents were given to you? Did you choose your parents or parents were given to you? Given to me. Parents are given to me. Yeah. Did you choose your face cut or face cut was given to you? Face cut. Certain things, yeah. Certain things are given. It's given, yeah. The pigment of your skin color, did you choose it? That was given. Given. It was given to you. These are all destiny. Yeah. Because in the same manner, the wealth you possess, the intelligence you possess, IQ, these are all gifts of God. They are given based on your destiny. Now, with all these things, what you are going to do, that is not destiny. Yep, that's, I mean, how do for example, say a wealthy man can misuse the wealth, or he can rightly use the wealth. Correct? No? That is not destined. That's in your hand only, how you want to use it. In the same manner, say somebody does not have a very big IQ, for example, they get poor marks, they can feel inferiority complex, or they can go for identifying some other unique talent that God has given them and be happy with themselves. Correct, no? So that means in any given situation, to be happy or to suffer is in your hands only. No, that is not destined. Yeah, see, as a bottom line is, it's a contentment. I mean, the moment you are content with whatever you have, yes, then you need not aspire or strive hard for anything next level, right? Correct. So contentment can be attained at any level. Any level you can attain it. Maybe that is true. So destiny, some people think destiny completely controls you, which is wrong actually. Yeah. Destiny means, like one example I'll give you, there were two rich sons, Nalakur Manigriv of Kubera. Yep. They had handsome body, and they are coming from they're wealthy kids, coming from well-to-do families. Now, they can use the body properly or misuse it. They misused it. They went to Mandakini Ganga and did some wrong things with the Devis. Yep. And then they were cursed to become trees in the next life, correct, no? Yep. So here is an example of somebody misusing the, handsomeness and the wealth. On the other hand, King Ambarish was king of the whole world. He never misused his wealth. In fact, Yudhishthira Maharaj became king of the world. They never misused. So the choice of right use or misuse is in our hands. So destiny doesn't control you fully. Correct, no? Now, for example, a cow is tied to a pole. Say this is a cow tied to a pole. This is called as the free will of the cow to roam around and eat as much grass is available within that radius. That is free will. But at the same time, this is also the limit for the cow. She cannot go beyond this. Correct, no? But if the cow behaves well, then the farmer will double the radius of the rope. Tomorrow, if the farmer is seeing even children are going and playing with the cow and cow is very calm, then he will remove the rope and allow the cow to roam around in the compound. And later, he may even allow the cow to go outside in the morning and come in the evening. That means your freedom is going to be increased by your good behavior. Correct? Even in jail, they do that. A person put in a C-class jail, if he behaves well, they put him in B-class and A-class jail. Then they release him after that. So use the free will given to you properly, you are going to get more freedom.
Correct, no? And misuse the free will, then your fate is going to be increased, the free will be reduced. For example, say a farmer brings a cow from the market. He is giving 2 meter radius rope. But anybody goes near the cow is showing the horns like this. Huh? So then the farmer thinks that children may get hurt. So he will reduce the radius. Then the cow cannot enjoy freedom much. Similarly, in this world, if you follow God's laws, your freedom increases. You can change your destiny appreciably. And if you don't follow God's laws, freedom is restricted, then you are increasing the fate. Then you increase the suffering. Is it clear? Yeah, up to some extent. Yeah. I'll tell you a simple example. These 4 things, for example, illicit sex. Illicit sex means sex before marriage or sex outside marriage. See, sex within marriage, a husband, wife, marrying and begetting children is not condemned in scriptures. It's perfectly religious. And Lord Krishna says that in Gita. But going for extramarital relation or going for sex outside marriage or before marriage, it's condemned illicit sex. Then meat eating includes fish, meat, eggs, eating all the non-vegetarian items, killing the animals and everything. Thirdly, intoxication like smoking, drinking, drugs. And fourthly, gambling. These 4 are called as sinful activities. These sinful activities, they are accompanied by 5 problems. The first problem is you have to spend money to buy them. They don't come free. Secondly, all these 4 items produce suffering. People have suffered. So they have to endure the pain. Thirdly, they have to go to doctor and buy medicines to put off the suffering. So they have to pay the doctor's bill. And fourthly, many of these items are accompanied with police. Because, for example, if somebody drinks and drives, they get an accident, the police is involved. Somebody is doing drug peddling, police is involved. So then they have to get punishment from the police. And fifth one comes at the end of life, which is Yamadutas, taking them to hell to punish them. So these 5 sufferings come when you do the 4 wrong activities, erratic activities, which are actually clearly spelled out by God. These are sinful, don't do it. And material nature restricts you from doing it so that you don't harm your soul further and further. Because you're going in a wrong way, just like you have foolproofing in a USB stick. If you put one side, it goes, other side doesn't go. Like that, God has made foolproofing. So if you go in the wrong path, He restricts you. And right things you do, for example, you do meditation, you do chanting, you do pranayam, you eat vegetarian food, you become very healthy. You do yogasanas. See, those who do yogasanas, even at the age of 60, 70, they look very young. Correct or not? Like I do yoga every day about 15, 20 minutes. You know, even jumping and jogging, aerobic exercises. You do some of these exercises, you will see even at 60, 70, you can actually have you can enjoy the good health. But you have to pay the price by doing every day, correct now? So that means good things you do, you reap good results. Bad things you do, get bad results. In this way, you can see a person who indulges in the wrong path, his freedom is restricted. A person who goes in the right path, his freedom is increased. It's very obvious to see with your own eyes. God has created nature in that way. So in the same manner, you can increase your free will by aligning with God, by coming to these classes, reading the Bhagavad Gita, and you understand how you increase. You will lead a very happy life. You can be happy in this world and in the next world also. All right? Thank you. Thank you. So, sticker, everything is ready? Yeah. Anybody else? I want to check if somebody can recollect a few points from the class, what I spoke today. Who can recollect 1 or 2 points from the class? Anybody? She can recollect. Say, you give the mic to her. You are a student of which standard? 12th. So she's a 12th standard student. So he's very attentive to studying and hearing. Very good. Yeah. The ABCDs. That you remember. Very good. Yeah. Tell me. Yeah. A for association, B for Bhagavad Gita, C for chanting, D for devotional diet, and E for engaging in seva. Very good. Give her applause. Very good. See, she captured very good point from the class. The most vital takeaway point, the call for action I gave, she has captured it. Very good. Anybody else? Mataji, give her.
हमारे शरीर में कौन कौन से विकार हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं वो बताया आपने। तो विकार है हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और उनको हम दूर कर सकते हैं चैंटिंग से। वेरी गुड, सोल्यूशन भी बता दिया माता ने। हाँ, वेरी गुड। हाँ, शी वाज रेडी। Prabhuji, the example that you gave, how from lust arises anger and then greed, with the example of Surpanka and the pastime of Surpanka and Lord Ram. Correct. That had happened. Correct. The result. So everything starts from where? What is the root for everything? Lust. And the lust should be transformed into love. Huh? How we do that? By ABCD, what she said. Huh? ABCD follow karne se we can transform lust into love. That's like Hanuman represents love, huh? And Ravana represents lust. Huh? Pandavas represent love. Kauravas represent lust. Prahlad represents love. And Hiranyakashipu represents lust. So Prahlad and all these people have seva vritti. And Ravana and Hiranyakashipu, they have bhoga vritti. Huh? So we have to go from bhoga vritti to seva vritti. That's the goal of all these practices. Thank you. Very good. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. You gave example of Ravana, Vibhishana and Kumbhakarna, what boons they took. And Ravana being like, he asked for like immortality and lot of wealth. Power. Power. Brahmaji refused because he said, I can't give immortality. Then Kumbhakarna nirdevatvam and nidratvam. That I liked. And mainly Vibhishana, Ram, Ravan and Mandodari. But devotees are very intelligent. And Vibhishana, he prayed that in spite of whatever circumstances it come, he has to follow the path of Sattva. That wonderful. She remembered a lot. Very good. Wonderful. Thank you. Anybody else? Any one point? Yes, Mataji. You could hear there with the sound came there? Sitting here only. Here only? Okay, please. Give the mic to her. It's okay, Prabhuji. Okay. Who? Okay. But I understood it. Okay. Okay. You have given examples regarding Karna and Vibhishana. That's a comparison, very important comparison. So from that, what did you understand from that? Exactly. Now you are in the good side. All these devotees are around you. This is the safest place for all of us. Thank you, Haribol. Very good. And anyone else? She wants to, but she's scared. No. Give her the mic. You should encourage her. She's sitting next to you. She won't fear now. Yeah. Yes. My name is Abhishri. And I wanted to tell a point about that cow thing you said. So if there's a cow and if somebody tied a rope to her, the owner, so if they behave nice, so the owner will let her free. So, but if she doesn't behave nice, he will tie her again. Very good. Very good. Similarly, she knows very well if she studies the subject well, mom will allow her to play. Correct, no? Then you get freedom to play. Correct, no? She captured the point very well. Very good. Very intelligent. Very good. Thank you. Anybody else? और कोई हिंदी में और? आप लोगों ने क्या समझा एक पॉइंट? हाँ बोलिए प्रभु. हरे कृष्णा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए हम सब उन सतचित घन चित आनंद घन का ध्यान करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम चलबते पुरुषो यदा वै। हम सब का जब पुण्य पुंज सुकृत कई जन्मों का पुण्य पुंज जब एकत्रित होता है तब हम इस सत्संग के भागी होते हैं। आज हम सब यहाँ पर होकर के भगवान के चरण शरण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इन सब का जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हरिद्वार जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, लेकिन मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो हमारे संत महापुरुष होते हैं हमारे अज्ञान के अंधकार को उस तिमिर को हटाने के लिए स्वयं वहां से चल कर के हमारे यहाँ आते हैं।
और हमारे अज्ञान के स्वरूप को निर्मल करके सूर्य के प्रकाश के समान कर देते हैं। ऐसे संत महापुरुषों को हम सब नमस्कार करते हैं और महाजनों ये न गतः सपंथा, जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं उसी का हम सबको अनुसरण करना चाहिए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे सत्पुरुषों को साधुवाद है जो ऐसे महापुरुषों को जो है बुला करके और सत्संग लाभ करवाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक बोला आपने। हाँ, who is getting the first Bhagavad Gita? Okay, I think Abhishri, she is youngest among all. हाँ. And Prabhuji, she is a book distributor also. अच्छा, very good. हम पार्क में Hello, chant one Hari Bol. and she does kirtan also very nicely. Great, very good, Yes. very intelligent. Yeah, go down. Kirat and Ahan, actually they have classes. Yeah. So all of you getting a pocket Gita, you're getting. She is a book reader. Very good. I hope she'll read. Very good. Hari Bol. Ahan. What is your name? Ah. Very good. He always used to attend Gurukul classes, Prabhu. Nowadays, like they are in 10th grade or 9th or 12th, so they are not able to attend. Yeah, they can have this book when they get time, they can start reading. Yeah. Hari Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Sachi. She is a very good singer, Prabhuji. Okay. And she sings nice bhajan. Earlier, like almost 2 years, she attended Gurukul classes. Wonderful. Now when I am signing, you can sing. Hari Naam hai Keval. That's like. मधु से भी मधुर है जो, शुभ से भी है शुभ, पावन से भी है पावन, हरि नाम वा केवलम, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंतिम सांस तब सब कुछ होगा विनाश, बचपन से जपो हरि नाम, हरि नाम वा केवलम, भाई सदा सुनो हरि नाम, गाओ मुख से वही सुबह शाम, अनंत महिमा अनंत नाम, हरि नाम वा केवलम. Beautiful. Hari Bol. Great singer. Very good. You are, She is going to study law, Prabhuji. very good. Very good. So you keep singing like this for the programs you can sing. I was reminded of Janavi Harrison singing when I heard you. Hari Bol. If you keep singing, you will make a lot of devotees. Huh? Very good. Now we'll give her a Bhagavad Gita. Huh? Hari Bol. Hari Bol. Shraddha.
Prabhuji, she also used to attend classes, and she's a singer, dancer, topper, what all, like everything, all rounder. Very good. You can come and perform for our cultural program. Yes, Prabhuji, sure. If we get chance, we have so many like kids. Jia, and she is an artist, Prabhuji. She creates lots of craft and art, and she has her YouTube channel also. Oh, really? What is the name? Jia. In your channel? Jia Vithani. Okay, very good. Congratulations. Hari Bol. Piyu. Hare Krishna, Hari Bol. She's a very playful, good Vaishnavi. I heard she has a Braille Bhagavad Gita ready. Yeah. Mataji will. Yeah. Hare Krishna. What's your name? Praveen. Praveen. Very nice, wonderful. Here. He's doing graduation, Prabhuji. BCom he's doing right now. He's doing BCom now. Okay, And he had started devotional service when he was about, 12 years ago in 2012. So he used to chant 16 rounds that time. But now, as of now, he hasn't continued. There has been a break after I went to Pune. Because he has got a degree now. I'm trying to revive it again. You trained him in the school days? Yes, Prabhuji. 12 years ago in Devnar School for the Blind. Oh. She taught me a lot of stories. Yeah. Amazing. The best thing is, the most important sense is the ears. Yes. Because the Shastra says Shruti. Yes, If you have heard, if somebody has heard and understood the truth, that eye is, the realized eye is more important than the external eye. Yes, Prabhuji. Say the Mahamantra, Praveen. Mahamantra Japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, Haribol. You got Braille Bhagavad Gita now. Huh? Hare Krishna. Can you, Prabhu, can you tell a few words about Champaklata? Yeah. Yes. Actually, Champaklata Mataji, she has been having a very special taste for reaching out to these children in the school. अच्छा हिंदी में बोलता हूँ. चंपकलता माता जी स्कूल में जाकर जो बच्चों को आंख नहीं है ऐसे बच्चों को सिखाती हुई आई है बहुत सालों से. वो रेगुलर जब रिपोर्ट भेजते मैं देखता हूँ, शुरुआत में 10-20 बच्चे थे, उसके बाद सारे बच्चे स्कूल के बच्चों को इकट्ठे करके सिखाया उन्होंने. शी वुड टेक द ट्रबल टू गो कुक प्रसाद हरसेल्फ. प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उनको महाभारत, रामायण, भगवत गीता, भागवत सिखाती थी, उनको माला जपवाती थी. जनरली हम लोग इस दुनिया में साधारण रेगुलर लोगों को कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है, माता जी करती आई है. उसके बाद भगवत गीता जो है उसको ब्रेल लैंग्वेज में जो उनको पढ़ने के लिए स्पर्श करके पढ़ेंगे वो लोग, उस तरह माता जी ने पहली बार सारे दुनिया में भगवत गीता को बनाने वाली माता जी है, भगवत एज इट इज प्रभुपाद जी को. तो जुहू मंदिर के जो बीबीटी डायरेक्टर है हमारे भीमा प्रभु और हिज होलनेस भक्ति राघव महाराज, वो सब लोग साथ में आकर इसका उद्घाटन की और माता जी को बहुत प्रशंसा किया गया मायापुर में, क्योंकि इसके कारण अभी जिनके पास भी आंखें नहीं है वो पढ़ सकते हैं ब्रेल भगवत गीता, जो अभी माता ने इनको भेंट दिया. थैंक यू वेरी मच माता जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. एक्चुअली ये सब गाइडेंस के वजह से ही होता है. जैसे राधेश्याम प्रभु जी हैं, मेरे गुरु महाराज है, और जो भी बीबीटी के अध्यक्ष हैं, उनके वजह से ही ये सब हुआ है. एंड ये बच्चों के वजह से खास करके हुआ है क्योंकि उनको नीड था. तो प्लीज़ ब्लेस देम, ब्लेस मी ऑल्सो, that I continue my devotional service. Thank you so much.